myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you? Hope you are all fine. Okay. In this lecture, we will solve the complex number chapter. Okay, and it is I think the fourth lecture from the complex number. So we will solve different type of questions from the complex number chapter for class 11, which are very important for your final exams. Okay, for all boards, CBSE and state board and this ICSE board, whatever it is. Okay, so for all type of boards, this type of questions are very important, which are solved in the previous lectures and which are going to be solved in the next lectures. Okay, so you should solve this type of questions from the different books. So you can see this NCERT, R.D. Sharma and this R.S. Agarwal, and this well-known books. From this well-known books, these questions are collected, and actually these solutions are being provided to you for your better conveniences. Okay, so thank you very much for joining the classes. Okay, and giving the support as well. Okay, thank you very much. So just write the first question. Show that a real value of x. Show that a real value of x. Show that a real value of x. Okay, real value of x satisfy the equation. Satisfy the equation 1 minus ix by 1 plus ix, okay, equals to a minus ib. If a square plus b square, equals to 1, where a and b are real. Where a and b are real. That means you need to show that the real value of x, that means you need to find the real value of x, okay, which will satisfy this equation, and the condition is a square plus b square equals to 1. That means x का कुछ वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, जो वैल्यू इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. दैट मींस यहाँ पर x है ना, x का वैल्यू अगर आपने यहाँ पर पुट किया तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. और ये कंडीशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपका कंडीशन है, और a और b यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, ठीक. तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो गिवन 1 minus ix by 1 plus ix equals to a minus ib, ठीक है. अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर बोथ साइड मॉड भी ले सकते हैं, ठीक है, मॉड लेके भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फ्रैक्शन टाइप का है, जो आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू टेक दिस componendo dividendo process. Okay, so componendo dividendo process, if you take these things, then 1 minus ix plus 1 plus ix. Componendo dividendo process means जैसे x by y equals to 3 by 5, ऐसा कुछ है कि नहीं. तो componendo dividendo है, दोनों साइड में करना पड़ेगा, ठीक है. x plus y, that means numerator plus denominator divided by numerator minus denominator equals to 3 plus 5 equals to 3 minus 5. That means ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 3 plus 5 3 minus 5. करना है तो इक्वल्स टू साइन के दोनों साइड में ही करना है, ठीक है. सो यहाँ पर 1 minus ix minus 1 plus ix equals to a minus ib, नीचे तो 1 है, तो a minus ib प्लस 1, a minus ib minus 1. तो यहां पर तो क्या होगा, यहां पर देखो तो 1 minus ix प्लस 1 माइनस प्लस ix डिवाइड बाय 1 minus ix फिर माइनस 1 माइनस ix इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस ib, a माइनस 1 माइनस ib, ठीक है.
तो इस साइड में देखो आई एक्स कैंसिल, इधर 1 1 कैंसिल, तो क्या आ रहा है 2 बाई माइनस 2 आई एक्स इक्वल्स टू ए प्लस 1 माइनस आई बी, ए माइनस 1 माइनस आई बी। ठीक है, ओके। देन ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों साइड में देखो 2 2 कैंसिल हो जाता है, दोनों ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल हो जाता है। क्या होता है माइनस 1 बाई आई एक्स इक्वल्स टू ए प्लस 1 माइनस आई बी बाई ए माइनस 1 माइनस आई बी। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोसेस भी कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, यहां पर आपको आई का दैट मींस एक्स का वैल्यू निकालना है कि नहीं, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इधर आई एक्स बाई 1 माइनस भी है और इधर ए माइनस 1 माइनस आई बी, ए प्लस 1 माइनस आई बी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर इस साइड में आएगा माइनस आई एक्स और इस साइड में देखो डिनोमिनेटर को हम लोग यहां पर रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दैट मींस कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर यहां पर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें ए माइनस 1 माइनस आई बी, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखो, नीचे क्या है ए प्लस 1 माइनस आई बी, तो डिनोमिनेटर में ये पार्ट है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा ए प्लस 1 प्लस आई बी, उधर भी ए प्लस 1 प्लस आई बी, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन किया है हम लोगों ने। सो दैट मींस माइनस आई एक्स इक्वल्स टू किसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, यहां पर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेशन आ जाएगा यहां पर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मींस ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर, जस्ट राइट। Then in the actually this numerator part a minus 1 minus ib, ये एक पार्ट है, a plus 1 plus ib, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं, ये पॉज करके ये सब चीज जो है वो लिख लो, नोट कॉपी लो और उसके बाद स्टार्ट करो। आई एक्स इक्वल्स टू क्या रहा है, नीचे तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस 1 ए प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस आई इंटू ए माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, ए माइनस 1 इंटू बी, फिर माइनस आई इंटू बी ए प्लस 1, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखो माइनस आई एक्स इक्वल्स टू नीचे क्या है ए प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहां पर आई स्क्वायर मतलब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई इंटू ए बी माइनस आई बी, माइनस आई इंटू ए बी माइनस आई बी, और ये फिर से आई स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर देखो आई ए बी कैंसिल, और इधर माइनस आई एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आई बी बाई ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्वेश्चन में शायद 1 दिया गया है कि नहीं, गिवन कंडीशन में देखो माइनस आई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 2 आई बी बाई ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 1 कैंसिल, दैट मींस माइनस आई एक्स इक्वल्स टू माइनस आई इंटू 2b बाई ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होल साइड माइनस माइनस कैंसिल, आई कैंसिल, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 2b बाई ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, नीचे भी हम लोग इसको तोड़ के ये लिख सकते हैं। जैसे देखो
यहां पर देखो x इक्वल्स टू ट्वाइस b बाई नीचे a प्लस वन होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस वन प्लस b स्क्वायर. सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2b बाई ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 1 और इधर ट्वाइस a. So that means x equals to twice b by 2 plus twice a. X equals to twice b by 2 common a plus 1. 2 cancel. That means x equals to b by a plus 1. That means ये रियल वैल्यू आ रहा है. That means x का रियल वैल्यू आपको निकालना था. ठीक है, तो आपने निकाल लिया x का रियल वैल्यू यहाँ पर. ओके, दैट इज द आंसर. ओके, x का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है कि नहीं. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. हो गया ये. ठीक है, मतलब यहां पर सिर्फ वही हुआ है, यहां पर आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई किया गया है, बस वही है. ठीक है. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mod z1 equals to mod z2 equals to mod z3 equals to dot equals to mod zn equals to 1. ठीक है, प्रूव दैट एक चीज आपको प्रूव करना है. ठीक है, होल मॉड z1 plus z2 plus z3 plus dot plus zn mod close equals to mod 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 plus dot plus 1 by zn. ओके, ये आपको प्रूफ करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट डू इट. ओके, अच्छा, सबसे पहले यू नीड टू राइट द गिवन पार्ट. गिवन पार्ट लिखो, जो भी गिवन होगा वो आपको पहले लिख लेना है. mod z1 mod z3 इक्वल्स टू डॉट mod zn इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब LHS स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड साइड. तो z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट प्लस zn. तो यहां पर देखो, यहां पर एक वैल्यू जो दिया गया है, जो गिवन पार्ट है, mod z1 इक्वल्स टू mod z2 इक्वल्स टू mod, दैट मींस जितना भी एक्सप्रेशंस हैं z1, यहां पर जितना भी z1 z2 z3 z4 लिख रहे हो ना, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ठीक है, सो वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ये क्वेश्चन में मिस हो गया है, ये आप लोग ऐड भी कर सकते हैं क्वेश्चन में. वेयर z1, z2, z3, z4 डॉट 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 zn all are complex numbers. Okay, now here you can see this mod z1 mod z2 mod z3 mod z4, ये सब जो है कैसे आएगा, है कि नहीं. ये सब mod z1 mod z2 ये कैसे यहां पर आएगा. ठीक है, तो यहां पर देखो, एक चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं, मतलब यहां पर इंडिविजुअली एक एक के ऊपर मॉड लाना है. कैसे ला सकते हैं, ठीक है, देखते हैं. z1 इंटू z1 बार, नीचे भी z1 बार, z2 इंटू z2 बार, नीचे भी z2 बार, z3 इंटू z3 बार बाय नीचे z3 बार, प्लस डॉट डॉट प्लस zn इंटू zn बार बाय zn बार, होल मॉड. ठीक है, अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि z इंटू z बार, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव किया है. ठीक है, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का किया है, वो प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव किया है. थोड़ा देखो उसको. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का लिंक मैं दे दूंगा. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड z होल स्क्वायर होता है, तो z1 इंटू z1 बार क्या होता है, मॉड z1 होल स्क्वायर बाई z1 बार प्लस मॉड z2 होल स्क्वायर बाई z2 बार, मॉड z3 होल स्क्वायर बाई z3 बार प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड zn होल स्क्वायर बाई zn बार. अब हर जगह देखो z1 z2 z3 z4 z5 ऐसे करते करते zn हर एक के ऊपर मॉड आ गया ना. तो दैट मींस एवरीवेयर यू कैन यूज दिस थिंग. मॉड z1 की जगह 1 बिठा सकते हैं, मॉड z2 की जगह 1 बिठा दो, मॉड z3 की जगह 1 बिठा दो, सब जगह 1 बिठा दो, है कि नहीं. सो नीचे आओ, नेक्स्ट लाइन लिखो, हर एक की जगह
1 बाई Z1 बार, 1 बाई Z2 बार, 1 बाई Z3 बार, डॉट 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 1 बाई Zn बार। तो ये बार मतलब कंजुगेट होता है। ओके, सो आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस पार्ट। इफ यू हैव Z1 प्लस Z2 होल बार, then we can write this Z1 bar plus Z2 bar separately. We can separate this bars and also. Okay, so we can split. Okay, so if you split these things here, I think this formation is in the splitted form. Okay, split किया गया है, देखो बार 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 हर जगह split किया गया है। जस्ट उसको एक साथ भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 plus dot dot plus 1 by Zn whole bar mod। ठीक है, लिख सकते हैं इसे, है लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो एक चीज हम लोग यहां पर नोट देके साइड में लिख के रखो, नोट। ठीक है, z यहां पर सपोज x प्लस आई वाई है। ठीक है, तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। ठीक है, तो मॉड z बार क्या होगा। अब z बार के ऊपर अगर मॉड साइन यूज करें तो देखो, मॉड यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये i के साथ कोफिशिएंट क्या है, माइनस वाई, मतलब i के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो आपको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। यहां पर माइनस वाई तो माइनस वाई होल स्क्वायर होगा। सो दैट मींस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है ये किसके साथ इक्वल है, मॉड जेड के साथ इक्वल है ना, मॉड जेड के साथ इक्वल है ना। सो दैट मींस ये जो मॉड जेड बार और ये मॉड जेड, ये तो मॉड जेड का ही आंसर है। ठीक है ना, मॉड जेड, इसके ऊपर मॉड यूज करो तो देखो यही आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो दैट मींस जेड बार के ऊपर मॉड और जेड के ऊपर मॉड, देन दोनों जो है वो सेम है। सो सेम ऐसे लिख सकते हो, मॉड जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड, ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। सो दैट मींस यहां पर होल मॉड और बार भी है, होल बार है, तो उसको डायरेक्टली हम लोग 1 बाई Z1, 1 बाई Z2, 1 बाई Z3 बार को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, प्रूव्ड, क्योंकि दोनों सेम है। ये इसके लिए ये वाला नोट जो है साइड में आपको लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। फिर हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट, इफ mod 1 minus I whole to the power x equal to 2 to the power x, okay, if this, then find all non-zero solution. Non-zero solution. That means if you have this equation, then you will have to find the solution. Solution means what? आपको x का वैल्यू निकाल के दिखाना है। Solution means what? Any variable value. Okay, and I think in this question the variable is x. So you need to find the value of x here. Solution means just variable value. So mod 1 minus I 2 to the power x. Mod means ऊपर पावर छोड़ दो, mod means क्या होता है, 1 स्क्वायर, और i के साथ कोफिशिएंट क्या है, -1 है, दैट मींस -1 होल स्क्वायर, होल टू दी पावर यहां पर x है। क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, लिख सकते हैं हम लोग। तो दैट मींस 1 प्लस 1
whole to the power x equals to 2 to the power x. So that means root 2 whole to the power x 2 to the power x. So 2 to the power x by 2 equals to 2 to the power x. तो अगर मैं एक साइड में ले लूं, ठीक है, एक साइड में अगर मैं यहां पर कन्वर्ट कर लूं, x to the power this 2 to the power x equals to 1 है कि नहीं? ठीक है, कर सकते हैं हम लोग ऐसे। फिर तो यहां पर 2 to the power x by 2 माइनस एक्स डिवाइड में है, दैट मीन्स पावर क्या होगा, माइनस में होएगा। ठीक है, देखो 2 to the power x by this 2, दैट मीन्स पावर माइनस होगा, डिवाइड में है दैट मीन्स पावर माइनस। सो ये माइनस कर दिया और उधर 1 है, सो दैट मीन्स 2 to the power x by 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस एक्स बाई 2 होगा इक्वल्स टू 1। 1 मीन्स 2 to the power 0। तो ये 1 को जो है 2 के पावर जो फॉर्म है उसमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 के ऊपर पावर है कि नहीं? तो अब दोनों के साइड 2 के ऊपर पावर, दैट मींस x by 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। बट यू नीड टू फाइंड द नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन। बट हियर यू आर गेटिंग दिस 0, दैट मींस हियर this equation has no non-zero, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन है ही नहीं, नॉन जीरो सोल्यूशन, क्योंकि x का वैल्यू 0 आ रहा है, तो आपको निकालना है नॉन जीरो सोल्यूशन, बट आपका 0 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स जिसके लिए ये नॉन जीरो सोल्यूशन मिले, आपको सब 0 ही मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन है ही नहीं इस इक्वेशन का। ठीक है, फिर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इफ आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। इफ आई जेड क्यूब, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ओके, देन प्लस आई इक्वल्स टू 0, then show that mod z equals to 1। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, और ये गिवन पार्ट है, दिस पार्ट इज गिवन। सो दैट मीन्स आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इक्वल्स टू 0, ये गिवन पार्ट है। तो आपको mod z इक्वल्स टू 1 इसका वैल्यू निकालना है, mod z इक्वल्स टू 1 है कि नहीं? अच्छा, तो एक काम करते हैं यहां पर आई जेड क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये तो जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और सामने माइनस कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो तो जेड स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू तो यहां पर क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, यार थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, और यहां पर जो है माइनस को हटा के प्लस दे रहे हो, और जेड इंटू आई स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं ना ऐसे। तो मींस ये प्लस है, उसको माइनस कर दिया, उधर आई स्क्वायर को इन्वॉल्व कर दिया, उधर माइनस था उसको प्लस कर दिया और आई स्क्वायर को इन्वॉल्व कर दिया। क्यों किया अभी पता चलेगा। अब पूरा इक्वेशन को जो है आई से डिवाइड करेंगे, आई से पूरा इक्वेशन को जो है आई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, सो देखो ऐसा फॉर्म मिल गया। सो साइड में लिख रखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय आई, ठीक है, आई से हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो यहां पर तो आपको यहां पर जेड का वैल्यू दैट इज मॉड जेड का वैल्यू इक्वल्स टू 1 निकाल के दिखाना है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, देखो जेड क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू आई, ये प्लस को फिर से हम लोग माइनस कर देते हैं और इधर आई स्क्वायर लिख देते हैं। आई स्क्वायर मतलब क्या है, -1, तो माइनस माइनस वही +1 रहता है कि नहीं। तो यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जेड माइनस आई, और उधर से आई कॉमन ले लेंगे,
जेड माइनस आई इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन किया, मिडिल टर्म नहीं फैक्टराइजेशन। जेड माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहां से दो वैल्यू मिल रहा है, जेड इक्वल्स टू आई, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई। ठीक है, अच्छा तो अगर यहां पर जेड इक्वल्स टू आई मिला तो मॉड जेड क्या होगा, रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि आई का कोफिशिएंट तो यहां पर 1 है, कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है 1 है। तो आई को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू आई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जेड, सो मॉड जेड ले लेंगे तो रूट ओवर ऐसा आएगा, तो दैट मींस मॉड जेड इक्वल्स टू क्या है 1 है नहीं। तो यहां पर क्या है, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई, तो यहां पर भी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई है ना, 0 माइनस 1 1 इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं। तो बोथ साइड ले लेंगे तो दैट मीन्स जेड स्क्वायर मॉड, और इधर भी रूट ले लेंगे 0 स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये भी देखो 1 ही आ रहा है, सो ये भी यहां पर मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर भी मॉड जेड क्या है 1 आ रहा है, सो दैट मीन्स दोनों ही फॉर्म में मॉड जेड का वैल्यू यहां पर 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो दैट मीन्स ये इक्वेशन आपको गिवन है और यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर आई स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मॉड जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जेड का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो ऐसा ही प्रोसेस आपको सुइटेबल होगा, दूसरा कोई प्रोसेस आपके पास नहीं है कि नहीं। ठीक है, फिर solve the equation, next question down, solve the equation solve the equation ठीक है, क्या है, mod z plus 1 equals to z plus 2 1 plus I है कि नहीं। solve the equation, okay, that means you need to find the value of z, okay, so z का वैल्यू तो निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z को तो पहले हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई या फिर a प्लस आई बी, कुछ भी ले सकते हो। दैट मींस यहां पर इनडायरेक्टली मुझे x और y का वैल्यू निकालना है, जिसको मैं यहां पर पुट करूंगा, करके मुझे z का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 1 देकर रखो। नाउ mod z plus 1 equals to z plus 2 into 1 plus I. So that means mod x plus iy plus 1 x plus iy plus 2 plus 2y. So that means mod x plus 1 plus iy और इधर x plus 2 plus I y plus 2। तो यहां पर मॉड है, उसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मॉड को हटाने के लिए रूट यूज करना पड़ेगा आपको। सो इधर x प्लस 2 I y प्लस 2। ठीक है, तो रूट ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो रूट ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो एक काम कर सकते हैं, 0 इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x और y का वैल्यू निकालना है मुझे। इक्वेशन आपके पास एक है, सो दैट मींस कंपेयरिंग मेथड आपको अप्लाई करना है, और कंपेयरिंग मेथड अप्लाई करना है, दैट मींस इन द बोथ साइड सेम फॉर्मेशन शुड बी देयर। ओके, सेम फॉर्मेशन, दैट मींस समथिंग रियल नंबर प्लस आई, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन। तो उस साइड में x प्लस 2 आई इंटू वाई प्लस 2। ठीक है ना, अब बोथ साइड कंपेयर करेंगे, इसके साथ ये कंपेयर होगा, इसके साथ ये होगा, है कि नहीं। सो रूट ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये है फर्स्ट। सो एक काम करते हैं, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है कि नहीं, ठीक है। तो इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इधर ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, है कि नहीं, माइनस ट्वाइस एक्स, और इधर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 तो वहां पर है। अगेन ये तो फर्स्ट दो को हम लोगों ने कंपेयर किया था। अब आइटा कोएफिशिएंट्स दोनों साइड में क्या होगा, इधर y प्लस 2 और उधर 0 होगा, दैट मींस y का वैल्यू क्या है, माइनस 2। अब y का वैल्यू यहां पर अगर पुट कर देंगे x का वैल्यू मिल जाएगा ना, ओके। सो फ्रॉम 2, जस्ट राइट द स्टेटमेंट, फ्रॉम 2 y square minus twice x minus 3 equals to 0. That means 2 square minus 2 whole square minus twice x minus 3 equals to 0. That means 4 minus twice x minus 3 equals to 0. That means minus twice x minus 1 minus cancel, x equals to half. So x का वैल्यू हाफ, y का वैल्यू माइनस 2, so z equals to from 1, z का वैल्यू निकालना है ना, तो x प्लस आई वाई लिया था, तो दैट मीन्स हाफ माइनस 2 इंटू आई, दैट इज द वैल्यू ऑफ z। वैल्यू ऑफ z ही तो आपको निकालना था, सो हियर इट इज द वैल्यू ऑफ z, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट जॉब, शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। फिर सिर्फ कैलकुलेशन है और तो कुछ नहीं है। शो दैट z mod z minus 2 by z minus 3 mod close equals to 2 represent a circle, ये प्रूफ करना है, ठीक है। फॉर ऑल represent a circle and find radius, तो ये गिवन है, mod z minus 2 by z minus 3 equals to 2, है कि नहीं, equals to 2। let z equals to x plus iy, दैट मींस ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस सर्कल का इक्वेशन आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद, है कि नहीं। अभी तक तो ये सर्कल के इक्वेशन तो दिखाई नहीं दे रहा। अब z का वैल्यू x प्लस आई वाई, अब इक्वेशन बनाना है, दैट मींस x और y रिलेटेड ही बनाना है कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने एज्यूम कर दिया z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो बिठा देते हैं x प्लस आई वाई माइनस 2 और इधर x प्लस आई वाई माइनस 3 मॉड क्लोज इक्वल्स टू 2। So that means x minus 2 plus iy, x minus 3 plus iy equals to 2, है कि नहीं। तो मॉड ऊपर नीचे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, रूट ओवर x minus 2 होल स्क्वायर और इधर y स्क्वायर डिवाइड बाई रूट x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2, है कि नहीं। So x minus 2 whole square plus y square by x minus 3 whole square plus y square equals to 2 square। बोथ साइड हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, इधर रूट है ना, तो रूट लेके तो हम लोग डील नहीं करेंगे, ओके। सो बोथ साइड हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, उधर 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया और इधर रूट हट गया। अब जो है x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, सॉरी
4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 प्लस 4y स्क्वायर है कि नहीं। अब सब एक साइड में लेके आ जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये दोनों गया। अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ये दोनों भी गया। अब माइनस 4x प्लस 24x ये दोनों भी गए, है कि नहीं। अच्छा, फिर इधर प्लस 4 इधर माइनस 36 प्लस 4 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और इधर है प्लस 20x और इधर माइनस 32 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लो, है कि नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ये किस चीज का इक्वेशन है? ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि सर्कल का जो जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल है आप लोगों ने शायद, अच्छा ये आपका इक्वेशन मिला है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां से अगर मैं सर्कल का इक्वेशन फॉर्मेशन कैसा होता है जानते हैं, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। और यहाँ पर सेंटर क्या होता है, अल्फा कोमा बीटा, ये सेंटर होता है। और रेडियस ओ यहां पर जो होता है ना आर, ठीक है। तो इस फॉर्म में मुझे सजाना है इसको, ठीक है। कैसे सजाएंगे, तो इसको सजाने के लिए एक काम करते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इक्वल्स टू 0, पूरा इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया है कि नहीं। एक काम करते हैं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 32/3 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने शायद छोटे क्लास में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ये प्रोसेस जो है आप लोगों ने किया होगा शायद। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका आंसर घूम फिर के यही आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेशन में सजा रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट यहां पर नहीं है। सो बी स्क्वायर यहां पर क्या होना चाहिए, ये बी है। सो दैट मीन्स 10/3 होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो यहां पर रहना चाहिए, बट यहां पर तो नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग फोर्सफुली तो नहीं ला सकते ना, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा एक टर्म लेके आ जाओ, ठीक है। समझ में आया क्या बोला है मैंने, है? फिर इधर प्लस 32/3 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये तो है ही। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 10/3 होल स्क्वायर प्लस सिर्फ वाई स्क्वायर है तो उसको y माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 100/9 प्लस 32/3 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 10/3 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर और इधर 3 और 9 का तो 9 ही होगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर 100 माइनस 3 2 6 3 3 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन आ रहा है, x माइनस 10/3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 4/9 आ रहा है शायद। सो 4/9। So x minus 10/3 whole square, y minus 0 whole square, 2/3 whole square. So radius क्या आ रहा है यहाँ पर, r square है ना, 2/3। और अगर आपको बोला जाए कि सेंटर, what will be the center? सेंटर क्या है यहाँ पर 10/3, 0, x minus alpha whole square plus y minus beta whole square. It is the center of the circle. ओके, हाँ। सो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पार्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में शायद किया है। कैसे होता है ये, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, एस स्क्वायर मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस
मुझे किसी भी तरह एट एनी कॉस्ट वी नीड टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन टू a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। मतलब मुझे किसी भी तरह उसको ऐसे सजाना है, सजाने के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेशन जो है वो दिखने को मिले, ठीक है। तो यहां पर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस ये जो है 2ab फॉर्मेशन में उसको मैं सजाऊंगा। सो 2 इंटू ए मीन्स x, 2 इंटू ए इंटू बी क्या होना चाहिए यहां पर जिससे मुझे 20/3 मिल जाए, तो b यहां पर 10/3 होना चाहिए। देखो दोनों ये मल्टीप्लाई करके पूरा 20/3 x आ रहा है, मैंने सजाए उसको 2ab। अब b प्लस बी स्क्वायर रहना चाहिए, तो बी स्क्वायर मतलब यहां पर क्या है 10/3 होल स्क्वायर। क्वेश्चन में तो नहीं था यहाँ पर 10/3, यहाँ पर सॉल्यूशन में आया है किसी भी जगह 10/3 होल स्क्वायर एक्सप्रेशन नहीं आया, हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है 10/3 होल स्क्वायर। अब मर्जी तो मेरा नहीं चलेगा, यहाँ पर मैंने प्लस 10/3 होल स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया तो माइनस 10/3 होल स्क्वायर भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या है मैंने माइनस 10/3 होल स्क्वायर प्लस 32/3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये एक्सप्रेशन बन गया x माइनस दिस प्लस वाई दिस, फिर माइनस 100/9 प्लस 32/3 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन मिला, फिर उसके बाद तो ये फॉर्मेशन मिल गया मुझे, ठीक है ना। ये वाला चीज साइड में लिख कर रखो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये फॉर्मेशन है, ठीक है। वही फॉर्मेशन दिमाग में रख के मैंने ये चीज किया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर रिप्रेजेंट सर्कल, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिया है। फिर उसके बाद तो फॉर्मेशन में आ गया, फिर देख के सिर्फ हम लोगों ने रेडियस यहाँ पर r स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर r स्क्वायर की जगह 2/3 होल स्क्वायर है, तो r मतलब क्या है 2/3, रेडियस 2/3। सेंटर क्या है अल्फा कोमा बीटा होता है, तो अल्फा की जगह यहाँ पर क्या आया 10/3, दैट मीन्स 10/3। बीटा की जगह क्या आया 0 आया, दैट मीन्स 10/3, 0। इट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ओके। So these are the solutions from the complex numbers, okay. So in the next lecture we will solve some NCERT questions. If any questions actually is left from NCERT, that will be done, okay, in the next lecture. And after that we will proceed to the argument of a complex number and the polar form of a complex number, the very important part of this complex number. These are all the basic concepts regarding this complex number. The main part of this complex number not done yet, okay. Every year from this complex number one question used to come, and after that the quadratic equation solved. Complex number, in the complex number quadratic equation solvings are also there, so you need to solve this quadratic equations, okay. So 3 parts are left, I think 4 or 5 or 6 lectures will be given from this complex number, okay. This complex number part is very lengthy part, okay. So these are the solutions from actually this basic parts, okay, from this complex number basic parts, okay. And after that we will see if any questions from the basic part is left in NCERT, we will solve the NCERT questions in the next lecture, okay. I think maximum questions are solved from NCERT, okay. Okay, just let me check from NCERT, just if anything is I think is left, then that will be done, okay. So in the next lecture, so for today that's enough, okay. So thank you very much for joining my class, okay. And if you like my videos, if you like my lectures, then please subscribe, like and share my channel, okay. Thank you very much, bye and